کراچی سے خیبر تک کے احوال میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں ابر رحمت کھل کر برسا، تیز بارش اور ژالہ باری سے جہاں موسم خوشگوار ہو گیا وہیں گرمی سے مرجھائے چہرے بھی کھل اٹھے۔ بارشوں اور گلیشیئر پگھلنے سے دریا سندھ میں پانی کی سطح انتہائی بلند ہو گئی، لیا میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے کئی بستیاں زیر آب آ گئی، لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ سیالکوٹ میں ایک ماہ قبل قتل ہونے والے میاں بیوی کی لاشیں نواحی گاؤں کے قریب کچرے کے ڈھیر سے برآمد، پولیس کے مطابق ملزم پہلے بھی سنگین مقدمات میں مطلوب تھا۔ 6 ماہ گزرنے کے باوجود اختیار نہ ملنے پر ملتان میں کونسلروں کا انوکھا احتجاج، انڈوں پر اختیارات 2 کے نعرے لکھ ڈالے، بس یہی نہیں حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ صادق آباد میں پسند کی شادی کرنے والا جوڑا روپوش ہو گیا، لڑکی کے ورثاء نے پولیس کے ساتھ مل کر لڑکے کے خاندان پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے۔ منڈی شاہجونا اور نواحی علاقوں میں رمضان المبارک سے قبل ہی اشیاء خورونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ سانگھڑ میں شہریوں نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کیے جانے پر دی جانے والی ہڑتال کی کال ناکام بنا دی، تمام کاروباری مراکز بھی کھلے رکھے۔ خیرپور میں مطالبات کے حق میں ہندو برادری کے ہمراہ سول سوسائٹی نے احتجاجی ریلی نکالی اور دھرنا بھی دیا۔ بنوں میں 3 روزہ خصوصی انسداد پولیو مہم، 2,60,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے، انتظامیہ نے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی لگا دی۔ اور پارا چنار میں رنگا رنگ جشن بہاراں فیسٹیول اپنے تمام تر رانائیوں کے ساتھ جاری، ثقافتی میلے میں پاک فوج کے افسران، سیاسی شخصیات اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، سب سے پہلے رخ کریں گے صوبہ پنجاب کا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں ابر رحمت کھل کر برسا، تیز بارش اور ژالہ باری سے جہاں موسم خوشگوار ہو گیا وہیں گرمی سے مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ گرمی سے مرجھائے چہرے کھل اٹھے، بارش نے جہاں موسم کو رنگین بنایا تو وہیں دلوں کا موسم بھی سہانا ہو گیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں رات گئے تیز آندھی چلی، بادل گرجے اور پھر ابر رحمت کھل کر برسا۔ مختلف علاقوں میں کھل کر بارش ہوئی جس کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ بارش نے ہر شے میں نئی جان ڈال دی ہے، گرمی کے ستائے عوام کے ساتھ ساتھ چرند پرند سبھی خوش ہیں، جبکہ درختوں میں نئی جان آ گئی ہے۔ شدید گرمی میں بارش نے بہار کا سما بنا دیا ہے۔ گجرات، سیالکوٹ، گوجرانوالا اور ملتان سمیت کئی علاقوں میں رات گئے تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی۔ طوفانی ہواؤں کے باعث کئی جگہوں پر درخت اور سائن بورڈز اکھڑ گئے، متعدد علاقوں میں بجلی کا نظام بھی جواب دے گیا اور کئی گھنٹے تک بجلی بند رہی۔ ادھر ملتان شہر میں بادلوں اور ٹھنڈی ہواؤں کا راج ہے، ٹھنڈی ہواؤں کے بعد موسم خوشگوار ہونے کے بعد شہری موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ مزید احوال جانتے ہیں ملتان سے فرحان مرغانی کی اس رپورٹ میں۔
शदीद गर्म मौसम हो तो ऐसे में अब्रे करम ना भी बरसे तो आसमान पर छाए हल्के बादल और गर्द आलूद हवाएं भी किसी नेमत से कम नहीं लगती। ऐसा ही मौसम है आज अपनी गर्मी के हवाले से मशहूर शहर मुल्तान का, जहां आसमान पर छाए हल्के बादलों और गर्द आलूद हवाओं के बायस शदीद गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार हुआ तो गर्मी से मुरझाए चेहरे भी खिल उठे। मैंने अपने घर में मीठे पराठे जो है ना वो बड़ी फरमाइश करके बनाए हैं और मैं बच्चों को लेके पार्क में आया हूँ, ठीक है, और ज़बरदस्त मौसम को एंजॉय कर रहा हूँ। हम आ गए हैं पार्क में बच्चों के साथ, यहाँ एंजॉय समोसे पकोड़े क्रीम रोल खा के मज़ा ले रहे हैं और झूलों के साथ तो लुत्फ ही और है। मौसम भी घटा वाला है। मौसम खूबसूरत हो तो पार्कों और तफरीह गाहों की रौनक में भी इजाफा हो जाता है, जहां गर्मी के सताए अफराद बिलखसूस बच्चे मौसम को एंजॉय करते दिखाई देते हैं। बच्चों का कहना है कि मौसम खुशगवार हो तो स्कूलों की छुट्टियों का मजा भी दोबाला हो जाता है। आज अंकल मुल्तान का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। इधर हम झूले भी खा रहे हैं, बादल भी छाए हुए हैं। खित्ता जनूबी पंजाब में मौसम की ये खुशगवारी गर्मी और लोड शेडिंग से सताए अफराद के लिए किसी नेमत से कम नहीं, इसीलिए यहाँ के बासी हवाओं और हल्के बादलों की आमद को भी इंजॉय करते हैं। कैमरामैन फयाज वागा के साथ फरहान मलगानी, वक्त न्यूज, मुल्तान। मुल्क भर में बारिशों और ग्लेशियर पिघलने से दरियाई सिंध में पानी की सतह इंतहाई बुलंद हो गई। लिया में कई मकामात पर हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां जेर आब आ गईं। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हालिया बारिशों और ग्लेशियर पिघलने से दरियाई सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा है, जिससे लिया के इलाके पहाड़पुर के नवाह में दरियाई सिंध के किनारे आर्जी तौर पर बनाए गए हिफाजती बंद के टूट गए और बस्ती पेरन और गजी जेर आब आ गई। न सिर्फ मकामी आबादी को शदीद नुकसान पहुंचा बल्कि कई एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गईं। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी का सिलसिला भी जारी है। गुज़श्ता साल आने वाले सैलाब के बावजूद भी ईसाई सरकार ने कोई हिफाजती इक़दामात ना किए, ना ही रवां साल कोई जामे हिकमत अमली अपनाई गई। लोगों का कहना है कि इस साल भी इन लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। उनके मकानात और मवेशी बह गए हैं, जबकि फसलें भी तबाह हुई हैं। हुकूमत की जानिब से उनके लिए कुछ नहीं किया गया। इलाका मकीनों ने हुकूमत से फौरी तौर पर नुकसानात के अज़ारे का मुतालबा किया है। सियालकोट में एक माह कबल कत्ल होने वाले मियां बीवी की लाशें नवाही गांव मुसलमानियों के करीब कचरे के ढेर से बरामद हुई हैं। 1 मई को डस्का के नवाही गांव के रिहायशी अब्दुल सत्तार का बेटा इमरान और उसकी बीवी जुबैदा मोटरसाइकिल पर घर से निकले लेकिन वापस न आए। अब्दुल सत्तार ने थाना बम्बावाला में दिल उर्फ खादू नामी शख्स के खिलाफ FIR दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने इंकशाफ किया है कि उसकी इमरान और इसकी बीवी जुबैदा को कत्ल करके लाशें कूड़े के ढेर में छुपा रखी हैं। पुलिस ने आज मुलजिम की निशानदही पर नवाही गांव मुसलमानिया के करीब TMA के डंपिंग पॉइंट पर कचरे के ढेर में दबी लाशें बरामद कर ली। लाहौर से कराची जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का इंजन नारोवाल के करीब फेल हो गया। मुसाफिरों के एहतजाज के बावजूद रेलवे इंतजामिया ने बहाली में ताखीर से काम लिया है। मजीद जानते हैं वक्त न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद हुमायूं से। हुमायूं, बताएगा क्या सूरत हाल है? इंजन खराब होने के बाद रेलवे इंतजामिया ने क्या मुतबादिल इंतजाम किया है? जी बिल्कुल ऐसा है कि ये ट्रेन जो अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस स्टैंड डाउन है, ये नारोवाल से लाहौर कराची के लिए सुबह 9:15 बजे रवाना होती है, लेकिन ये जो ही बद्दोमली स्टेशन पर पहुंची तो इंजन का रेडिएटर खराब होने की वजह से इंजन फेल हो गया। रेलवे इंतजामिया ने 4 घंटे की तखीर के बाद जो लाहौर से रिलीफ इंजन मंगवा के ट्रेन को यहाँ से रवाना किया तकरीबन 1:45 पर। 4 घंटे ट्रेन में सैकड़ों मुसाफिर थे जो वो शदीद गर्मी में वहां पर जो है वो रुल गए। लोगों का कहना है कि नारोवाल मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद हुमायूं, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ के DHQ की इमरजेंसी में डॉक्टर्स की मुबैयन आदम मौजूदगी के बायस एक शख्स चल बसा। वाक़े के खिलाफ मुश्तइल वरसा ने एहतजाज किया और पुलिस से हाथापाई की। ये है मुजफ्फरगढ़ के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की इमरजेंसी, जहां डॉक्टर न होने पर 50 साला शख्स 3 घंटे तक तड़पता रहा और बिल आखिर दम तोड़ गया। मरीज की हलाकत पर वरसा ने एहतजाज किया और अस्पताल में तोड़ फोड़ की। मुश्तइल मुजाहिरीन के एहतजाज पर अस्पताल का अमला फरार हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो मुजाहिरीन उनसे भी उलझ पड़े और हाथापाई भी हुई। वरसा ने
ने इल्जाम लगाया कि जवाद को अस्पताल लाया गया तो बुलाने के बावजूद कोई डॉक्टर 3 घंटे तक नहीं आया, जिससे मरीज जान की बाजी हार गया। उन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालिबा किया। 6 माह गुजरने के बावजूद इख्तियार न मिलने पर मुल्तान में काउंसलरों ने अंडों पर इख्तियारात दो के नारे लिखकर अनोखा एहतजाज किया है। मुल्तान में इख्तियारात न मिलने पर काउंसलर्स ने कचहरी चौक में अनोखा एहतजाज किया। नौमुंतखब काउंसलरान ने अंडों पर इख्तियारात दो के नारे दर्ज करके एहतजाज किया है। नौमुंतखब बल्दियाती काउंसलरों का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन को 6 माह हो गए मगर ताहाल उन्हें इख्तियारात नहीं दिए गए। इख्तियारात न होने पर ये अपने वोटर्स के काम और हल्के में तरक्याती काम करवाने से कासिर हैं। काउंसलरों ने इजहार यकजहती के लिए पीपल्स वाला लॉयर्स फोरम के वफद से सीनियर रहनुमा हबीबुल्लाह शाकिर की क़यादत में एहतजाज में शिरकत की। सादिकाबाद में पसंद की शादी करने वाला जोड़ा रूपोश हो गया। लड़की के वरसा ने पुलिस के साथ मिलकर लड़के के खानदान पर जुल्म के पहाड़ ढा दिए। सादिकाबाद के नवाही इलाका संजरपुर के रिहायशी शाहनवाज के करीब बस्ती की नाजिया से 6 माह कबल पसंद की शादी की। मुखालिफत के बायस मियां बीवी रूपोश हो गए, ताहम लड़की के वरसा ने लड़के वालों पर अरसा हयात तंग कर दिया है। पहले बस्ती का मुहासरा किया, फिर घरों पर अंधाधुंध फायरिंग की। बाद अज़ां लड़के के करीबी अजीज पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही जान भाग हो गया। दोनों वाकयात के मुकदमा थाना कोट सब्जल में दर्ज कर लिए गए हैं। दूसरी जानिब पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए मजलूम खानदान पर 10 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज कर दिए। इस पर भी गुस्सा ठंडा न हुआ तो वापडा एहलकार जो लड़की का करीबी अजीज भी है, उसने पूरी बस्ती की 10 दिनों से बिजली मुनक़ता कर रखी है। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए इल्जाम लगाया है कि पुलिस लड़की के वरसा के साथ मिलकर पूरी बस्ती को हिरासा कर रही है। खबर है सरगोधा से, जहां मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले मुलजिम के वरसा ने एहतजाजी मुजाहिरा किया और लाश लेने से इनकार कर दिया। सरगोधा में थाना सलामवाली पुलिस के साथ मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले मुलजिम के लवाहिकीन ने एहतजाजी मुजाहिरा किया है। डकैती के मुलजिम मंशा के वरसा ने थाने के सामने टायर जलाकर पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और पथराव किया। इस दौरान पुलिस ने मुजाहिरे में शरीक खवातीन को भी बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। इस मौके पर वरसा का कहना था कि पुलिस ने अदालती रिमांड के दौरान जाली मुकाबले में मंशा को कत्ल किया, जबकि दूसरी जानिब पुलिस हुक्काम का यह भी कहना है कि मुलजिम पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था और पुलिस मुकाबले में फायरिंग के तबादले के दौरान अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हुआ है। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले करने की कोशिश की, लेकिन वरसा ने लेने से इनकार कर दिया। वरसा ने आला हुक्काम से जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया है। मंडी शाह जूना और नवाही इलाकों में रमजान मुबारक से कबल ही अशया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मंडी शाह जूना और नवाही इलाकों में रमजान मुबारक से कबल ही अशया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मंडी शाहजूना और नवाही इलाकों में रमजान मुबारक से कबल ही अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। फल, सब्जी हो या अजनास, सब कुछ गरीब की दस्तरस से बाहिर होता जा रहा है। गरीब आदमी के लिए दाल खाना भी मुश्किल हो गया है। साबुत चने फी किलो 130 रुपए से 160 तक, दाल चना फी किलो 140 रुपए, दाल माश फी किलो 250 रुपए तक में फरोख्त हो रही है। महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ कर रख दी है। अवामुन्नास का कहना है कि गोश्त और फल तो पहले ही गरीब की पहुंच से बाहर हो चुका है और अब दालों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों का कहना है कि ज़िलाई सतह पर चेक एंड बैलेंस का कोई इंतजाम नहीं, जिसका जो जी चाहता है वो रेट लगाता है। बेलगाम मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गोजरा में कब्जा माफिया ने रमजान बाजार को भी न बख्शा। बाजार के लिए मुख्तस की गई जगह पर कब्जा जमा कर फर्नीचर मार्केट बना दी गई है। गोजरा में रमजान मुबारक के लिए मॉडल बाजार की जगह मुख्तस की गई और इस हवाले से बैनर्स भी आवेजा कर दिए गए, लेकिन कब्जा माफिया ने इस जगह को भी मुआफ नहीं किया और इस पर कब्जा जमा लिया। कब्जा माफिया न सिर्फ इस जगह पर काबिज हुई बल्कि इसे फर्नीचर मार्केट में भी तब्दील कर दिया और बाकायदा कारोबार शुरू कर दिया। अहले इलाका ने इस कार्रवाई इस सख्त गम गुस्से का इजहार किया है। उनका कहना है कि कब्जा माफिया की कार्रवाइयां हद से तजावुज कर चुकी हैं और इस सिलसिले में जिले इंतजामिया भी ख्वाबे खरगोश में मुब्तला है और किसी किस्म का नोटिस नहीं लिया जा रहा।
मंडी शाहजीना के नवाही इलाके कोट खान का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब के नारे किसके लिए मंडी शाहजीना के नवाही इलाके कोट खान का सरकारी प्राइमरी स्कूल न सिर्फ चार दीवारी से महरूम है बल्कि स्कूल के इर्द गिर्द कचरे के ढेर लगे हुए हैं। स्कूल के इर्द गिर्द सीवरेज के गंदे पानी के बायस मच्छरों की अफजाइश में भी इजाफा हो गया है, जिसके नतीजे में बीमारियों के फैलने का भी खदशा है। पानी पीने के लिए स्कूल में सिर्फ एक ही नलका है, जिससे निकलने वाला पानी भी इंतहाई आलूदा होता है। अहले इलाका का कहना है कि स्कूल को मिलने वाली ग्रांट कभी भी स्कूल की हालत बेहतर करने पर नहीं लगाई गई। अहलियान इलाका ने महकमे तालीम और अरबाब इख्तियार से स्कूल की हालत जार का नोटिस देने की अपील की है। रहीमयार खान में असिस्टेंट कमिश्नर रजा अब्बास ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और नाकिस कारकर्दगी पर मुख्तलिफ होटल्स और पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई की है। रहीमयार खान में असिस्टेंट कमिश्नर रजा अब्बास और उनकी टीम ने मुख्तलिफ मकामात पर अचानक छापे मारे। इस दौरान होटल मालिकान को गंदगी और मुजरे सेहत खाने आवाम को खिलाने पर हजारों रुपए के जुर्माने आयद किए गए, जबकि LPG की गैर कानूनी रीफिलिंग चेक करते हुए मुख्तलिफ दुकानें सील कर दी गई। छापक के दौरान पेट्रोल पंप्स और डीजल और पेट्रोल के पैमाने भी चेक किए गए। इस मौके पर उनका कहना था कि ये कार्रवाइयां DCO रहीमयार खान और वजीर आला पंजाब के हुक्म पर की जा रही हैं। इस दौरान किसी के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। सरगोधा में वजीर आजम नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अरकान असम्बली भी शरीक हुए। शुरका का कहना था कि पूरी कौम वजीर आजम की सेहत से मुताल्लिक फिक्रमंद है। सरगोधा हामिद अली शाह की मस्जिद में वजीर आजम नवाज शरीफ की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए खसूसी दुआ का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्लिमानी सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान हामिद हमीद और MP अब्दुल रजाक ढिल्लो, डॉक्टर नादिया अजीज समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। दुआया तकरीब में खसूसी तौर पर कल होने वाली ओपन हार्ट सर्जरी की कामयाबी और वजीर आजम की जल्द अज जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की गई। इस मौके पर नून लीग के मुंतखब अरकान असम्बली का कहना था कि इनकी दुआ है कि मियां नवाज शरीफ ऑपरेशन के बाद जल्द ही सेहतियाब होकर वतन वापस लौटें, ताकि जो ख्वाब उन्होंने पाकिस्तानी अवाम की फलाह बहबूद के लिए देखे हैं और जिनको वो अमली जामा पहनाने में मसरूफ हैं, वो पाया तकमील को पहुंच सकें। हम सब की दिली दुआ है कि अल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। आज इस दुआ में सरगोधा शहर के वकला भी शामिल थे। आज इस दुआ में हर मकतबा फ़िक्र रखने वाले लोग शामिल थे। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए, उनके अहले खाना के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। दुआया तकरीब में अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई और उन्होंने वजीर आजम नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अवाम का कहना था कि हर पाकिस्तानी अपने वजीर आजम की जल्द सेहतियाबी के लिए दिल जाली पीर पर जूतों की बारिश कर दी। साहिवाल के नवाही गांव रती टबी में चंद माह कबल डेरा डाला और जादू टोने के नाम पर सादा लो देहातियों को लूटने लगा है। रुखसाना नामी खातून भी अपने घर का एक मसला लेकर उसके पास पहुंची तो जाली पीर ने गैर इखलाकी गुफ्तगू शुरू कर दी। खातून ने पहले तो जूतों से जाली पीर की खूब खातिर मदारत की और बाद अज़ां पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस थाना फरीद टाउन ने जाली पीर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जाली पीर ने इंकशाफ किया है कि वो इससे पहले भी मुख्तलिफ शहरों में आवाम को बेवकूफ़ बनाता रहा है। वाज़ेह रहे कि पुलिस ने जाली पीर को गिरफ्तार तो कर लिया, मगर ताहाल इसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका। नारोवाल में बढ़ती हुई डकैतियों ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। मुसल्ला घर में घुसकर नकदी और कीमती अशिया लूटकर फरार हो गए। नारोवाल के इलाके मोहल्ला गौसिया में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात हुई, जिसमें 3 नामालूम नौजवान घर से लाखों रुपए के तलाई जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए। डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर वारदात की और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मालिक मकान मोहम्मद वसीम ने बताया कि घर में एक नामालूम लड़की एक 7 साला बच्चे के साथ घर में दाखिल हुई, जिसने साथ ही 3 नामालूम मुसल्ला नौजवान अंदर आए और असलहे के जोर पर उन्हें कमरे में बंद करके तलाई जेवरात और नकदी, जिनकी मालियत लाखों रुपए है, इसके अलावा 4 मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। घर वालों ने ताले तोड़कर खुद को आज़ाद करवाया। पुलिस थाना सिटी मसरूफ़े तफ्तीश है। नारोवाल में इस्तकबाल रमज़ान और मुबारक के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें माह सयाम की फजीलतों और बरकतों को बयान किया गया।
तकरीब से खिताब करते हुए उलमाए कराम का कहना था कि माह सयाम मुसलमानों को सब्र व तहम्मुल और बुर्दबारी का दर्स देता है और हम सब का फ़र्ज है कि इस मुबारक महीने की कद्र करें और गुनाहों से खुद को बाज रखें। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान हमारे इस्लाफ से अपनी जानों के नजराने पेश करके हासिल किया है और आज हम अपने कायद अल्लामा और प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर की क़यादत में पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं और हमारी ये तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान को हकीकी मानों में इस्लामी और फलाही रियासत नहीं बना दिया जाता। डस्का के TMA हॉल में तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें साबिका और हालिया मुलाजमीन ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी MNA सईद इफ्तिखारुल हसन शाह और MPA आसिफ बाजवा थे। इस मौके पर मुअज़्ज़िज़ीन शहर और TMA मुलाजमीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। मुक़र्ररीन ने साबिका TMA मुलाजमीन की कारकर्दगी को सराहा और उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। तकरीब के आखिर में रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को एजाज़ी शील्ड्स और तहाइफ पेश किए गए। इस मौके पर उनका कहना था कि हम सब का फ़र्ज़ है कि अपने अपने फ़राइज़ बतरीक़े एहसन अदा करें। गुजरांवाला में 5वीं नेशनल बेस्ट रेसलिंग चैंपियनशिप के मुख्तलिफ कैटेगरीज मुकाबलों में रेलवे के रेसलर्स ने हरीफ को पिछाड़ते हुए पोजीशन हासिल कर ली, जबकि वाबडा ने दूसरी और पाक आर्मी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जिना स्टेडियम में 5वें नेशनल बेस्ट रेसलिंग चैंपियनशिप के मुकाबले हुए जिनमें इंटरनेशनल रेसलर्स ने हिस्सा लिया और वाबडा के रेसलर असद बट ने 80 केजी के वेट और 90 केजी के मुकाबलों में इनाम बट ने गोल्ड और 80 केजी वेट में मोहम्मद सजावल ने सिल्वर मेडल जीतकर फतह हासिल की। रेलवे के रेसलर मोहम्मद नज़ीर ने 70 केजी में गोल्ड और 80 केजी वेट में मोहम्मद सजावल ने सिल्वर, अरशद खान ने 90 केजी मुकाबले में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। आर्मी की जानिब से 70 केजी वेट में रेसलर मोहम्मद सज्जाद ने सिल्वर मेडल हासिल किया। 5वीं नेशनल बेस्ट रेसलिंग चैंपियनशिप में वाबडा ने सबसे ज्यादा मेडल्स लेकर पहली, रेलवे ने दूसरी और आर्मी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। कबीरवाला के इलाके कोहीवाला में PIAH अकेडमी के तहत हॉकी समर कैंप जारी है। समर कैंप में हॉकी फेडरेशन के डायरेक्टर डोमेस्टिक एंड डेवलपमेंट ओलंपियन नवीद आलम ने भी दौरा किया। समर कैंप के शुरका ने गुफ्तगू करते हुए ओलंपियन नवीद आलम का कहना था कि पाकिस्तान में हॉकी के मैदान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। 2018 हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खोए हुए मकाम की बहाली का साल साबित होगा। तमाम तर साजिशों के बावजूद हॉकी को खत्म नहीं किया जा सकता। उनका मजीद कहना था कि कौमी खेल के वकार को दोबारा बुलंदियों की जानिब ले जाने के लिए हॉकी को स्कूल्स और कॉलेजेस सतह पर फरोग देने की जरूरत है। टोबा टेक्सिंग में सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा अब्दुल अजीज मस्त रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात जारी हैं, जिसमें मुल्क भर से अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। टोबा टेक्सिंग में अजीम रूहानी बुजुर्ग हजरत बाबा अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 3 रोजा तकरीबात का सिलसिला जारी है। दरगाह अकीदतमंदों की जौक दर जौक आमद का सिलसिला भी जारी है। दूसरे रोज बड़ी धमाल का इनेकाद किया गया। दरगाह पर अकीदतमंदों के लिए लंगर और दीगर सहूलियात का खुसूसी एहतमाम किया गया था, जिसमें हजारों अफराद ने खाना खाया। नौजवान, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने चादरें चढ़ाई और उर्स में शिरकत की। अवाम की सिक्योरिटी के लिए रेस्क्यू, सिविल डिफेंस, ट्रैफिक पुलिस, सादा कपड़ों में मलबूस हसास इदारों के मुलाजमीन समेत पंजाब पुलिस का अमला भी ड्यूटी दे रहा है, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटा जा सके। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर नफीसा शाह जिलानी ने कहा है कि सिंध में गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस से ज़राअत और टेक्सटाइल के शोबों को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। आवाम को चोर कहने वाले वजीर पानी और बिजली का बयान अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी इन अल्फाज की मजम्मत करती है। सचल ऑडिटोरियम हॉल में खैरपुर में बैतुल माल की जानिब से सोशल वेलफेयर और जिला इंतजामिया के ताउन से माजूर बच्चों, खवातीन और मर्दों में व्हील चेयर्स तकसीम करने की तकरीब और मीडिया से बातचीत करते हुए पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर नफीसा शाह का कहना था कि विफाक की जानिब से गुज़श्ता साल पेश किए जाने वाले बजट में आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। बिजली के निर्खों में इजाफा करके 16 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिल भेजे गए, जो आवाम के साथ ज्यादती है।
वफाक के बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने के दावे झूठ साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि बैतुल माल पाकिस्तान का बजट 7 अरब रुपए है, जबकि सिंध के लिए बजट करोड़ों में रखा गया है, जो कि काबिले मजम्मत बात है। खैरपुर में मुतालिबात के हक में हिंदू बरादरी के हमरा सिविल सोसाइटी ने एहतजाजी रैली निकाली और धरना दिया गया। पाकिस्तान हिंदू यूथ काउंसिल के ज़ेरे तमाम हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 3 बच्चों अंधु कुमार, संजय कुमार और दर्शना के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ रैली निकाली गई। राजेश कुमार, नारायण दास और दीगर की क़यादत में निकाली गई रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची, जहां शुरका ने एहतजाजी धरना दिया। इस मौके पर सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। जैकबाबाद में महकमा तालीम की जानिब से 580 मुलाजिमीन को बरतरफ करने पर सेकेंडरी तालीम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जैकबाबाद महकमा तालीम के लोअर स्टाफ एसोसिएशन की जानिब से 580 मुलाजिमीन को बरतरफ करने पर ज़िले दफ्तर से सेकेंडरी तालीम के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहरे में शरीक मुलाजिमीन ने सेकेंडरी तालीम के खिलाफ नारेबाजी की और प्रेस क्लब पहुंचकर धरना दिया। सांगड़ में शहरियों ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किए जाने पर दी जाने वाली हड़ताल की कॉल नाकाम बना दी। तमाम कारोबारी मराकज़ भी खुले रहे। सांगड़ शहर में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ इंतजामिया की जानिब से किए गए ऑपरेशन के खिलाफ वकील रहनुमा अनवर महमूद अजामानी ने हड़ताल की कॉल दी, मगर सांगड़ के तमाम छोटे बड़े तजारती मराकज़ खुले रहे, जिनमें मोबाइल मार्केट, सईद मार्केट, कियानी रोड की दुकानें शामिल हैं। जबकि अमन व अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पुलिस की भारी नफरी शहर का गश्त करती रही। हैदराबाद का रुख करेंगे, जहां लियाकत कॉलोनी के एक निजी अस्पताल में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मरीजों का मुफ्त मुआयना और फिजियोथेरापी भी की गई। फलाही तंजीम की जानिब से लियाकत कॉलोनी के एक निजी अस्पताल में एक रोज़ा फ्री हड्डी और जोड़ कैंप मुनक्किद हुआ। इस मौके पर माहिर अमराज हड्डी और जोड़ डॉक्टर रशीद अहमद भट्टी ने कैंप में आने वाले मरीजों का यूरिक एसिड और हड्डियों का मुख्तलिफ मशीनों के जरिए मुआयना भी किया। और अब रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। हरीपुर के इलाके खानपुर में सरकारी जगह पर कायम 200 के करीब दुकानों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया और तमाम तजावुजात गिरा दी गई। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज हारिस बंगश से। हारिस, बताइएगा ऑपरेशन कहां किया गया है और कितनी दुकानें ऐसी हैं जिनको मिसमार किया गया है? जी हाँ, बता दूं कि आज सुबह से लेकर आज दिन दोपहर तक ही तकरीबन खानपुर का हरीपुर का नवाही गांव खानपुर है, उसके इलाका तरनावा में एसी हरीपुर असिस्टेंट कमिश्नर अरशाद खान और दीगर पुलिस और एफसी और दीगर जो हैं उनके कमांडोज तकरीबन 50 के करीब जो कमांडोज थे, उन्होंने भी इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और इस ऑपरेशन में तकरीबन 200 से ज्यादा दुकानें थी जिनको टारगेट करना था, जो कि हुकूमती अराजी पर जो बनाई गई थी गैर कानूनी तरीके से, और जो दुकानों के मालिकान थे उनको भी 2 माह पहले ही तकरीबन इस लेटर के जरिए आगाह कर दिया गया था कि इन दुकानों को मसमार कर दिया जाएगा, आप ये जगह खाली कर दें। पर लेकिन आज दौरान ऑपरेशन जो है कुछ लोगों ने भरपूर मजामत की और पुलिस के साथ भी झड़पें हुई थोड़ी बहुत, जिसकी बिना पर 4 अफराद के खिलाफ आज जो है मुकदमा दर्ज हुए और 4 अफराद को हिरासत में पुलिस ने 4 अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। हारिस, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। बन्नू में 3 रोजा खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। 2,60,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंतजामिया ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी है। 3 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए 550 रज़ाकार टीमें तश्कील दी गई हैं, जो जिला भर में 2,60,000 से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। पोलियो मुहिम के दौरान 100 से जायद पुलिस एहलकार फराइज अंजाम दे रहे हैं, जबकि सिक्योरिटी खदशात पर जिले इंतजामिया ने 3 रोज के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी भी लगा दी है। मुहिम के दौरान बकाखेल के IDPs कैंप में रिहाइश पजीर बच्चों को भी पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की साबिका अहलिया ने खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों के लिए मासूम के नाम से तंजीम बनाने का ऐलान कर दिया है। कहती है खैबर पख्तूनख्वा में चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिससे तनख्वाहें भी पूरी नहीं हो पाती।
पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रेहाम खान का कहना था कि बुलंद नारों से तब्दीली नहीं आती, बल्कि बेसहारा और गरीब बच्चों की मदद करने से तब्दीली आती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत होश के नाखून ले, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ा मसला है। 1990 में चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन पर दस्तखत हुए, तस्वीरें खींची गई, मगर अमल दरामद कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने नेशनल चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन बनाने का मुतालिबा किया। एक बच्चे की उन्होंने एक बड़ा पर्सनल अकाउंट लिखा है और वो जाहिर है बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है किसी के लिए भी पढ़ना। आज उनकी बीमार थी इसलिए वो आज हमारे साथ नहीं। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ 1 करोड़ रुपए हैं, जिससे टीचरों की तनख्वाहें भी पूरी नहीं होती। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद में इजाफा हुआ है। हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं मगर दूसरों के बच्चों का नहीं रखते और इनसे मजदूरी करवाते हैं। रेहाम खान का कहना था कि केपी के असेंबली चाइल्ड मैरिज बिल पास करें। खैबर पख्तूनख्वा में 21% बच्चों की कम उम्री में शादी होती है। उन्होंने कहा कि बच्चे सिर्फ तनाइयों के साथ जारी है। सकाफती मेले में पाक फौज के अफसरान, सियासी शख्सियात और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पारा चनार में 4 साल वक्फे के बाद रंगारंग स्पोर्ट्स मेला शुरू हो गया है। मेले में क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और फुटबॉल समेत मुख्तलिफ खेलों की 80 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 5वें स्पोर्ट्स मेले की इफ्तिताही तकरीब कुर्रम एजेंसी के सदर मकाम पारा चनार के जिना सिविल स्टेडियम में मुनक्किद हुई, जिसमें एजेंसी भर से मुख्तलिफ खेलों की 80 टीमों ने हिस्सा लिया। पॉलिटिकल एजेंट कुर्रम एजेंसी इकरामुल्लाह खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कुर्रम मलेशिया के कमांडेंट कर्नल उमर मलिक समेत अफसरान, कबायली अमायदीन, खिलाड़ियों और शायकीन की कसीर तादाद शरीक हुई। तकरीब से खिताब करते हुए असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट शाहिद अली ने कहा कि फाटा सेक्रेटेरिएट की खुसूसी हिदायत पर तमाम एजेंसियों में खेलों का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद क़याम अमन और नौजवानों में मस्बत सरगर्मियों का फरोग है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने हुकूमत के इस इकदाम को सराहते हुए खिलाड़ियों के मसाइल भी हल करने के इकदाम उठाने का मुतालबा किया। बुनियादी मकसद यही है कि तालीम के साथ साथ हम अपने नौजवानों को सेहतमंद एक्टिविटीज़ भी दे रहे हैं, जिससे वो न सिर्फ जिस्मानी तौर पर फिट हो बल्कि इनमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो भी पैदा हो जाए। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए खिलाड़ियों का कहना था कि पारा चनार के नौजवानों के लिए खेलों की सरगर्मियां शुरू होने पर इससे उनकी सलाहियतें खुलकर सामने आएंगी। प्लेयर बहुत खुश है इस तरह के मेलों से। एजेंसी में अमन का क़याम होगा और हम सब एंजॉय करेंगे। स्पोर्ट्स मेला मजीद 3 रोज तक जारी रहेगा। इख्तितामी तकरीब में अहम शख्सियात शिरकत करेंगी, जबकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और अब कुछ खबरें होंगी आजाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात करीब आते ही तरक्याती मंसूबों में भी तेजी आ गई है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मीरपुर में DHQ का संग बुनियाद रख दिया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 500 बेड पर मुश्तमिल डिविजनल हेडक्वार्टर अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया है। 4 मंजिला स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल 39 करोड़ रुपए की लागत से 3 साल में मुकम्मल होगा। फेज 1 में चिल्ड्रन और फैमिली वार्ड्स तामीर किए जाएंगे। डिविजनल हेडक्वार्टर अस्पताल का कुल मुरब्बा 1 करोड़ 20 लाख मुरब्बा फीट है। आलमी सतह के मयार के इस अस्पताल में मीरपुर डिवीजन के अलावा जेहलम और दीना के लोगों को भी सहूलियात फराहम होंगी। अस्पताल का डिज़ाइन मुल्क की मारूफ डिज़ाइन एंड कंसल्टेंट कंपनी ने तैयार किया है। कराची से खैबर तक के अहवाल से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वक्त न्यूज़।